In previous video, what we have learned? We have learned about charge and its types. Then we see point charge and again quantization of charge. Now after that, Coulomb's law. Coulomb gave the law to define force acting between 2 point charges. You know what is point charges? When the dimension of two charges is very much less than the distance between them, then both charge are known as point charges. So suppose we have 2 point charges Q1 and Q2. Both these charges can be similar, can be opposite. If they are similar, then they feel the force of repulsion. And if both charges are opposite charges, then they feel force of attraction. Clear? So we have 2 point charges Q1 and Q2. They are kept at a distance r apart from each other. Suppose. Then Coulomb gave his law to determine force acting between these 2 point charges. According to Coulomb, the force acting between any two point charges, or we can say the force of attraction or repulsion. Force can be attraction or repulsion. Attraction force कब लगेगा? जब चार्ज अपोजिट होंगे. अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए या दोनों नेगेटिव चार्ज हुए तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू कूलम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between 2 point charges, it is directly proportional to product of their magnitudes. And it is means force, and it is inversely proportional to a square of distance between them, that means r square. This is called Coulomb's law. The force of attraction or repulsion acting between any 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes, and it is inversely proportional to the square of distance between them. तो सपोज 2 चार्ज हैं आपके पास Q1 एंड Q2. They are kept at a distance r apart from each other. Then the force acting between them will be F proportional Q1 into Q2 and F inversely proportional r square. Clear? Now after that, you know, whenever any law having more than 2 points, we will combine it, है ना. तो by combining equation 1 and 2, and you also know how to combine 2 equations. So F both having F, then we write single times F. Proportional sign single. Q1 Q2 in numerator and upon r square in denominator. This is your equation number 4. ऐसे कंबाइन कर दें. क्लियर? प्रपोजनल साइन को हटाकर जब हम इक्वल का साइन इसमें पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज के. ये स्मॉल के यूज़ किया है मैंने, है ना. के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 वेयर K is a proportionality constant. Its value depends on the medium between the point charges. Which medium is present? See, medium effect डालता है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे और आपके बीच में अभी एयर मीडियम है, तो मेरी साउंड वेव्स में, है ना,
साउंड वेव्स के चलने में कुछ और बात होगी। जैसे ही मेरे और आपके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, सपोज़ वाटर भरा हुआ है, हम पानी के अंदर हैं और फिर मैं आपसे बोलने की कोशिश करूं तो फिर मेरी साउंड वेव्स आपको डिफरेंट सुनाई देंगी। तो मीडियम बदलने से क्या हुआ, वेव्स में फ़र्क आ जाता है। सिमिलरली दो चार्ज के बीच में अगर एयर है तो इनके बीच में काम करने वाला फोर्स अलग रहेगा, उसकी वैल्यू अलग होगी। और अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम फिल कर दिया है आपने, तो फिर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करेगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसा आपने मैग्नेट के फोर्स में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम मैग्नेट टू मैग्नेट डायरेक्ट नियर लाते हैं तो इनमें जो फोर्स लगता है वो तेज़ लगता है, लेकिन अगर बीच में मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं तो फिर मैग्नेट और मैग्नेट के फोर्स में चेंज आ जाएगा। का मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडीज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो वो फोर्स की वैल्यू जो है उनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है उस पर बहुत डिपेंड करती है। क्लियर? तो के की वैल्यू भी किस पर डिपेंड करेगी, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा फील्ड है, राइट। एंड ऑल्सो द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर भी ये डिपेंड करती है। क्लियर? इन एसआई सिस्टम, एंड फॉर एयर और वैक्यूम, the value of K is 1/4 pi epsilon 0 in SI system and for air और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को हम एक जैसा मीडियम लेके चलते हैं, क्योंकि हमको सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ करने हैं, अर्थ पर। और अर्थ पर हम एयर को किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच से कभी नहीं हटा पाएंगे। दो लोगों के बीच से अगर हम एयर हटाने की भी कोशिश करेंगे तो वर्क करने कौन जाएगा, हमको सांस लेने के लिए भी तो एयर चाहिए। तो हम सारे प्रैक्टिकल जाके वहाँ वैक्यूम में तो कर नहीं सकते। दैट्स वाई हम कंसीडर करके चलते हैं कि एयर और वैक्यूम को हम कैसा मान के चलते हैं, एक जैसा मान के चलते हैं यहाँ फॉर अर्थ सरफेस। क्लियर? तो एयर और वैक्यूम इसलिए इसमें लिखा हुआ है। तो वैक्यूम हो यानी स्पेस में आप हो जहाँ एयर भी नहीं है, या आप एयर में हो, तो दोनों के लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है। कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पढ़ा मैंने इसको, एप्सिलॉन 0। इसको सिर्फ इस साइन को एप्सिलॉन पढ़ते हैं और 0 लगा हुआ है, दैट्स वाई एप्सिलॉन 0। इट हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू ऑल्सो, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। दिस इज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, 9 × 10⁹, and its unit is Newton into meter square per coulomb square. The value of K or the value of 1/4 pi epsilon 0 is 9 × 10⁹ Newton into meter square per coulomb square, है ना। अब आपको देख के लगा होगा कि अरे यार ये यूनिट हम कैसे याद रखें सर, तो फट से बोल दिए। कुछ नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैं तुरंत बना लिया हूँ इससे। मैं किसकी वैल्यू बता रहा हूँ आपको, के की। तो मैंने क्या किया है ना, इन सब का साइड चेंज करके के की यूनिट भी बना ली है यहीं से। याद नहीं है मेरे को। कैसा किया मैंने, फोर्स की यूनिट न्यूटन लिख दिया। ये साइड चेंज करेंगे तो इनटू में आएगा। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों आएंगे अपॉन में, तो 2 कूलम अपॉन में, तो क्या हो गया, पर कूलम स्क्वायर। साइड चेंज से बना दिए वो, हाँ। वैल्यू 9 × 10⁹। तो बाय इक्वेशन थर्ड वी हैव व्हाट, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 into Q2 upon R square, or you can write it F is equal to 9 × 10⁹ into Q1 into Q2 upon R square. This is
फॉर वॉट, एयर और वैक्यूम। ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला और ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों है ये। ठीक है, इसको कंबाइंड में अपन इक्वेशन नंबर या अलग अलग ही नंबर दे दो। दिस इज 4, दिस इज 5। क्लियर? नाउ सपोज एनी अदर मीडियम प्रेजेंट, हाँ, वेयर दिस एप्सिलॉन 0, epsilon 0 is called absolute permittivity. एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी है कुछ नहीं, किसी भी मीडियम की एक, कहना चाहिए एक किसी भी मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे एयर का। तो चार्ज के लिए एयर का बिहेवियर, एयर मीडियम की एक खासियत जो चार्ज के लिए होती है, उसको परमिटिविटी नाम दे दिया गया। तो क्या बोलते हैं एप्सिलॉन 0 को? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये इसका नाम है एप्सिलॉन 0। क्लियर? अब मान लीजिए कोई अदर मीडियम है, इन एनी अदर मीडियम, दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम फील्ड है ना? तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के, और एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं पर ये और आ जाएगा साथ में। एप्सिलॉन 0 के साथ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R। और इसी को कभी कभी के से भी, कई बुक में आपको इसकी जगह के भी लिखा मिलेगा, कैपिटल के, लेकिन अभी मैंने जो यूज़ किया था वो स्मॉल के है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए यहाँ स्मॉल के यूज़ कर लें, नहीं तो अपन को लगेगा अरे दो के एक जैसे। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। नाउ दिस एप्सिलॉन R इज कॉल्ड व्हाट? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसका नाम क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम, जो भी मीडियम प्रेजेंट है, सपोज Q1 और Q2 के बीच में एयर के अलावा आपने, सपोज हमने लकड़ी का बुरादा भर दिया है, दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है या प्लास्टिक भरा हुआ है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, वायर्स वगैरह में कोटेशन कर देते हैं। तो ये एप्सिलॉन R अगर बुरादा भरा है दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या कहलाएगा वो? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बुरादा। क्लियर? वुड डस्ट का क्या कहलाएगा? वो वुड डस्ट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, यानी लकड़ी का कहलाएगा। तो जो भी मीडियम है उसका एप्सिलॉन R होगा। क्या है इसका नाम? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपके फॉर्मूले एयर और वैक्यूम, मतलब 1/4 एप्सिलॉन 0 बस लिखा है, तो समझ जाओ ये एयर और वैक्यूम का फॉर्मूला है। और इसके साथ के लिखा मिल जाए या एप्सिलॉन R लिखा मिल जाए, तो फट से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? ये किसी और मीडियम की बात हो रही है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। तो इनको देख के ही आप फॉर्मूले को पहचान सकते हैं कि ये किसका है? Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो ये किसी और मीडियम के लिए है ना? फॉर एनी अदर मीडियम इन SI यूनिट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? अरे इतना ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं, फोर्स है यार, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? हाँ, अब ऐसा नहीं, इधर देखो ना, किसका फॉर्मूला लिख रहे हो आप? फोर्स का। तो अब फॉर्मूला इतना लंबा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अरे अब यूनिट सोचने लगे, अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन ही होते हैं। ठीक है, तो फॉर एनी अदर मीडियम इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ F इज दिस मच, वेयर एप्सिलॉन 0, और इसी को क्या यूज़ किया जा सकता है? K। तो
तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, तो कहीं आपको के लिखा मिल जाए एप्सिलॉन आर की जगह, हाँ तो कोई बात नहीं है, एप्सिलॉन आर लिख लो या के लिख लो, दोनों एक ही बात है। हाँ किसी बुक में आपको ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। तो वेयर एप्सिलॉन आर और के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है, और इसके अलावा जितने भी मीडियम हैं, एयर और वैक्यूम का कितना है 1, इसके अलावा जितने भी मीडियम हैं उन सभी का 1 से ग्रेटर होता है। तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू हो जाती है 1। यही कारण है कि एयर और वैक्यूम के फॉर्मूले में आपको एप्सिलॉन आर नहीं दिख रहा है। आप एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो यही तो बन जाएगा फॉर्मूला, देख लीजिए। क्लियर? तो फॉर एयर इट्स वैल्यू इज 1 एंड फॉर एनी अदर मीडियम द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ। अब एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर ना सिर्फ एप्सिलॉन भी होता है, ये जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताऊंगा उस समय बताऊंगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है मीडियम की, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन 0 किसकी है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और सिर्फ एप्सिलॉन मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो, आपको अगर मैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछूं तो बड़े आराम से आप इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। आप क्या करोगे? एप्सिलॉन 0 का साइड चेंज कर दो तो आपकी ये बन जाएगी, फॉर्मूला बन गया ये। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, द रेशो ऑफ relative permittivity of medium to the absolute permittivity of air or vacuum is called dielectric constant of the medium। बन गई डेफिनेशन? तो इससे हम, इस रिलेशन से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इसको नोट आउट में लिख लेना। क्लियर? नाउ इन CGS यूनिट, बाद में देखेंगे, इन CGS unit the value of K, we are talking about this K, that means proportionality constant। इसकी वैल्यू CGS मीडियम में 1 होती है। SI यूनिट में ये वैल्यू होती है, CGS में नापोगे तो कितनी होगी? 1। क्लियर? फॉर एनी मीडियम इट इज़ 1। तो अब आपका फोर्स कितना हो जाएगा? देन बाय इक्वेशन नंबर 3 वी हैव व्हाट? F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? हाँ, डायन। फोर्स की CGS यूनिट डायन होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको यूनिट चार्ज बताऊंगा इसी से डेफिनेशन से। क्लियर? नाउ वी सी यूनिट चार्ज विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सो इफ वी पिक इक्वेशन नंबर 5, सी दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इफ in equation 5 if we put value of F 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, तो इसमें अगर आप F की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। R इज इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा हूं मैं, 1 मीटर।
SI यूनिट में है। और कौन सा फॉर्मूला पिक किया है हमने, एयर और वैक्यूम वाला। तो ध्यान रखना है इसको डिफाइन करते समय फॉर्मूला ये वाला पिक किया है। ये किसका है, एयर और वैक्यूम का है। तो जब हम इसका डिफाइन करेंगे तो ये सारी बातें ध्यान रख के आपको डेफिनेशन बनानी है। क्लियर। एक तो तरीका होता है देखो कि हमने रट लिया और लिखा है, और दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला हम याद करते हैं, बाकी चीज़ें इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, जैसे यूनिट हो गई या इस तरीके के जो भी डेफिनेशंस लिखनी है कोई, तो हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस बात होती है, तो याद करना कम हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को यूनिट चार्ज यानी 1 चार्ज की डेफिनेशन देना है। यूनिट मतलब 1। तो मैंने क्या किया, F की वैल्यू इतनी ही रखी ताकि ये कैंसिल हो जाए। फिर R की वैल्यू भी मैंने 1 रख दी, और Q1 एंड Q2 दोनों को इक्वल ले लिया है Q, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा ले लिया। तो बाय इक्वेशन, तो इफ़ इन इक्वेशन 5 दीज वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सो वी गेट व्हाट, इफ इन इक्वेशन 5 F इक्वल दिस, R इक्वल दिस एंड Q1 Q2 इज इक्वल टू दिस, वी गेट व्हाट, रखना। तो Q1 और Q2 की जगह पर आप Q रखोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू Q स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर मतलब ख़त्म, ये से ये कैंसिल, मतलब Q स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल गई है। देख लीजिए। और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यूनिट चार्ज की ही तो डेफिनेशन देनी है हमको, इससे दे देंगे हम। Q की वैल्यू 1 मिल गई ना, 1 मतलब यूनिट। तो नाउ व्हाट वी से, हाँ, अब इन सभी को वर्डिंग में हम लिख दें यहाँ पर, तो बन जाएगी डेफिनेशन। देखो कैसे, जो आपके सामने मैंने ये लिखा है इसी को मैं वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो इफ 2 सिमिलर चार्जेस, मैं सिमिलर चार्जेस ले रहा हूँ। अब अगर मैंने सिमिलर चार्जेस ले लिया तो मेरे को लिखते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलूँ। और अगर आप बोलते हो इफ़ 2 अपोजिट चार्जेस, तो लिखते समय अब आपको ध्यान रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखें आप। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यूज़ कर रहा हूँ सिमिलर, तो आप ध्यान से सुनना भाई। तो मैं सिमिलर चार्जेस ले रहा हूँ तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं लिखूँगा, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब कर दिया आपने तो मैंने जैसे बोला था 0 मिल जाएंगे डेफिनेशन के, कि आप लिख रहे हो चार्जेस सिमिलर और फोर्स लिख रहे हो अट्रैक्शन। आपका इंप्रेशन ही खराब हो गया पूरा, राइट। तो इफ 2 सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू मैंने इक्वल ले ली थी ना, तो मैंने ये भी लिख दिया। इफ 2 सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are kept 1 meter apart from each other in air and or vacuum। फॉर्मूला कौन सा पिक किया था मैंने, तो देखो मैंने लगाया एयर और वैक्यूम है, इस फॉर्मूले से निकाल रहा ना मैं। तो अब सारी चीज़ें देखो यहाँ से स्टार्ट। इफ 2 सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर kept 1 meter apart from each other in air or vacuum and if they repelled each other by the force 9 into 10 to the power 9 meter or they experience the force of repulsion of 9 into 10 to the power 9 Newton, then each of them is called unit charge। ऐसे सुनोगे तो डेफिनेशन बहुत लंबी लग रही होगी, अरे ये तो रटना पड़ेगा ना ना ना, बनाई है मैंने इस। अब ये पॉइंट आउट करते हुए आप चलते चलो, मैं ऐसे गया हूँ, देखो इनको डिफाइन करते हुए यहाँ तक आया हूँ और डेफिनेशन खत्म। एक बार और सुने। इफ़ 2 सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर kept 1 meter apart from each other in air or vacuum and if they experience the force of repulsion, मैंने सिमिलर लिए थे तो रिपल्सन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप अपोजिट ले लोगे तो क्या यूज़ करोगे, अट्रैक्शन। बस ये कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। इफ दे एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ
repulsion of 9 into 10 to the power 9 Newton, then each of the charges is called, और है ना, यूनिट चार्ज. बन गई डेफिनेशन. दैट्स इट. क्लियर? ओके.